TV92 ગુજરાતનો અવાજ। TV92 ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અકીલા ઝુબેર દિવાન અને આપ જોઈ રહ્યા છો TV92 ગુજરાત, ગુજરાતનો આવાજ। ભરૂચના વરિષ્ઠ પત્રકાર અને કોંગ્રેસ અગ્રણી દિનેશ અડવાણી પર હુમલો કરનાર ગેંગ પૈકી એક ઇસમને ભરૂચ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો। ગત તારીખ 8મી ઓગસ્ટના રોજ વરિષ્ઠ પત્રકાર અને એક્ટિવ કોંગ્રેસ અગ્રણી દિનેશ અડવાણી પર એક ગેંગ દ્વારા રાત્રિના સમયે હથિયારો વડે જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જ્યોતિનગર ભરૂચ ખાતે આંધ્રા બેંકની ગલીમાં એસએલડી હોમ્સ પાસે ઇનોવા ગાડીમાં 5 થી 7 જેટલા અજાણ્યા ઇસમો દ્વારા જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેમાં આજરોજ ગંભીર રીતે ગુનાને અંજામ આપનાર આરોપીની ગેંગ પૈકી એક ઇસમને આજરોજ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો। પોલીસ સૂત્રોએ જાણ થયેલી છે કે ખાનગી બાતમીદારોથી જાણ થયેલ છે કે ગુનામાં કામ માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલ ઇનોવા ગાડી જેનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર GJ5CR8520નો ઉપયોગ કરી ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો, જેમાંનો આરોપી અનિલ ઉર્ફે અનિલ કાઠી મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં પણ આ ગાડીનો ઉપયોગ કરી અનેક ગુનાઓ કરી ચૂક્યો છે, જેમાં ઇનોવા ગાડી અનિલ કાઠી તથા તેના મળતિયા અને ઈસમો પિંકેશ ઉર્ફે બુરુ, કિશોરભાઈ ચૌહાણ તથા સતીશભાઈ ઉર્ફે સત્યો રાજપૂત તથા 3 થી 4 જણા ઈસમો અને અનિલ કાઠી સાથે ઇનોવા ગાડીમાં આવી ફરિયાદીને માર મારીને નાસી ગયા હતા, જેમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભરૂચના કુખ્યાત બુટલેગર નયન ઉર્ફે બોબડો કિશોર કાયસ્તે સુરતના અનિલ કાઠી સાથે મિત્રતા હોય નયન બોબડાએ ગુનાને અંજામ આપવા માટે પૂરતું કાવતરું રચ્યું હતું। હાલ નયન બોબડાએ અન્ય ગુનાને અર્થે જુનાગઢ પાસામાં જતા પહેલાથી જ અનિલ સાથે મળી કાવતરું રચ્યું હતું, જેની કબૂલાત પોતે કરી હતી। તે સાથે ભરૂચના અન્ય બુટલેગર તિલક હરિકૃષ્ણ પટેલ સાથે મળી પોતાના દિનેશ અડવાણી સાથે અંગત અદાવત હોય અને બદલાની ભાવના સાથે કાવતરાઓને અંજામ આપી ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી હતી। તિલકે અન્ય બુટલેગરોને તારીખ 8/8/2021ના રોજ વહેલી સવારે નેશનલ હાઈવે નંબર 48 ઉપર આવેલ શિવકૃપા હોટલ ખાતે રહેવા માટે વ્યવસ્થા કરી આપી અને તે દિવસે રાત્રિના 12:15ના રસ્તામાં ઘટનાને અંજામ આપ્યું, જે પૈકી ભરૂચ સી ડિવિઝન પોલીસે ઘણી તપાસ બાદ આજરોજ ભરૂચના બુટલેગર તિલક હરિકૃષ્ણ પટેલની ધરપકડ કરી અને એને સાથીદારો અંગેની પૂછપરછ કરી છે। પકડાયેલ આરોપી તિલક હરિકૃષ્ણ પટેલ રહેઠાણ B6 જ્યોતિનગર બોલાવ ભરૂચ વોન્ટેડ આરોપીઓ 1 નંબર નયન ઉર્ફે બોબડો કિશોરભાઈ કાયસ રહેઠાણ લોઢવારનો ટેકરો દાંડિયા બજાર ભરૂચ। બીજાની જો વાત કરીએ આરોપીની તો અનિલ ઉર્ફે અનિલ કાઠી ખીમજીભાઈ રાણવા રહેઠાણ 5 નવનાથ સોસાયટી સોસ્યો સર્કલ પાસે ખટોદરા સુરત। ત્રીજા આરોપી પિંકેશ ઉર્ફે ભુરો કિશોરભાઈ ચૌહાણ રહેઠાણ 109 રવિ પાર્ક સોસાયટી ગેટ નંબર 3 કપોદરા બસ સ્ટોપ પાસે સુરત। ચોથો આરોપી સતીશ ઉર્ફે સત્યો અશોક પ્રતાપસિંહ રાજપૂત રહેઠાણ 304 શ્રીનિવાસ સોસાયટી SR પેટ્રોલ પંપ પાસે કડોદરા સુરત। પાંચમો આરોપી મહેન્દ્ર કાઠી રહેઠાણ સુરત તથા અન્ય તપાસમાં નીકળે તે આરોપીની ધરપકડ અર્થે શોધખોળની તજવીજ પકડાયેલા આરોપી થકી શરૂ કરી દેવાઈ છે। મોહસિન કારાનો રિपोर्ट। तारीख 8 अगस्त 2021 को ज्योतिनगर के पास भरूच पुलिस सी डिवीज़न पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक भरूच के पत्रकार दिनेश आडवाणी पर 5 से 7 व्यक्तियों के द्वारा एक गाड़ी में जानलेवा हमला किया गया। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत भरूच सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत ही पुलिस स्टेशन में IPC के सेक्शंस 307, 325, 326, 143, 144, 147, 148, 149, 120B एंड GP एक्ट 135 के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया। ऑफेंस रजिस्टर होने के उपरांत इन हमलावरों की तलाश तेज़ की गई और इस तलाश के प्रयासों के तहत सरकार श्री द्वारा विश्वास प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए CCTV कैमरों का एवं ई-गुजकॉप प्रोजेक्ट का उपयोग किया गया और गाड़ी की दिशा में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस गाड़ी का जो संबंध है वो सूरत के एक अनिल काठी और उसके चाचा महेंद्र काठी से स्थापित हुआ।
अनिल काठी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि यह महाराष्ट्र के नवापुरा पुलिस स्टेशन में मर्डर के ऑफेंस में एब्सकॉन्डर है। इस मामले में तलाश जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण पुरावा प्राप्त हुए जिसके द्वारा इस पूरी घटना का जो संबंध है वो भरूच के कुख्यात बूटलेगर नयन किशोर कायस्थ का नाम सामने आया। नयन किशोर कायस्थ उस समय पासा के तहत जूनागढ़ जेल में था, अतः उसका ट्रांसफ़र वारंट के तहत उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में हस्तांतरित किया गया और उसके स्टेटमेंट के बेस पर एवं उसकी पूछपरछ में नयन किशोर कायस्थ के इस पूरे जानलेवा हमले में मास्टरमाइंड होने की बात सामने आई। साथ ही साथ कुछ अन्य आरोपियों का भी नाम इसमें सामने आया, जिसमें नयन किशोर कायस्थ के शागिर्द भरूच के ही एक अन्य व्यक्ति तिलक हरिकृष्ण पटेल का नाम सामने आया। तिलक हरिकृष्ण पटेल को अरेस्ट करने में भरूच डिवीजन पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। तिलक हरिकृष्ण पटेल एवं नयन किशोर कायस्थ की स्टेटमेंट में पूछपरछ में ये पूरे गुनाहित कृत्य को जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो पूरी चीज़ें स्पष्ट हुई। इस कृत्य की जो योजना है वो नयन किशोर कायस्थ के द्वारा और अनिल काठी जो कि सूरत में का निवासी है, यह जो मर्डर के ऑफेंस में एब्सकॉन्डर है, इन दोनों के द्वारा नयन किशोर कायस्थ के पासा प्रपोजल के तहत जेल में जाने से पहले ही ये पूरी घटना की योजना तैयार कर ली गई थी। उसके पश्चात 8 तारीख को नयन कायस्थ के शागिर्द तिलक हरिकृष्ण पटेल के द्वारा अनिल काठी और उसके साथ बाकी अन्य हमलावरों के लिए नेशनल हाईवे 48 पर होटल में रहने की अरेंजमेंट की गई। उसके पश्चात दिनेश आडवाणी की मूवमेंट की पूरी रेकी और उसकी पूरी मूवमेंट की जानकारी जो है वो उसका कार्य तिलक हरिकृष्ण पटेल को सौंपा गया। 8 अगस्त की रात्रि को जैसे ही दिनेश आडवाणी जी अपने घर से निकले, उसी समय तिलक हरिकृष्ण पटेल के द्वारा हमलावरों को उनके मूवमेंट की जानकारी दी गई और उसके पश्चात हमलावरों के द्वारा इनोवा गाड़ी में आकर के और दिनेश आडवाणी जी पर जानलेवा हमला किया। इसका मोटिव इन सबके बीच की आपसी रंजिश, पुरानी रंजिश होना सामने आया है। अन्य आरोपियों की तलाश तेज है और इसमें महाराष्ट्र पुलिस का सहयोग भी भरूच डिवीजन पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा और इसके लिए भरूच पुलिस हमेशा भरूच में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, मुख्य हेतु क्या है इसके अंदर? इस गुनाहित कृत्य की जो योजना है वो पहले ही बना ली गई थी। इसमें इसके तिलक हरिकृष्ण पटेल, नयन किशोर कायस्थ के दिनेश आडवाणी जी के साथ पुरानी रंजिश थी, उसके चलते ही ये पूरे घटना की योजना बनाएगी। इसमें कुछ अन्य आरोपी जिनका नाम सामने आया है, वैसे इसमें एक महेंद्र काठी है, एक अनिल काठी, ये सूरत के निवासी है, पंकेश चौहान है, पंकेश और भूरो चौहान है और सतीश राजपूत है, ये सभी सूरत के निवासी हैं और 2 अन्य अजाने आरोपी भी हैं जिनकी धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। क्या रंजिश क्या है सर, कौन सी बात को लेकर हमला हुआ है? इसके लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपसी पुराने इनके मतभेद थे, रंजिश थी, वो चीज़ें सामने नहीं आई है, वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उसके लिए मास्टरमाइंड जो है इसका नयन किशोर कायस्थ, उसको फिर से ट्रांसफर वारंट के साथ लाने की प्रक्रिया जारी है, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सर, भरूच पुलिस का रेकॉर्ड है कि कोई भी क्राइम हो तो 2-3 दिन में डिटेक्ट हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया लंबी चली तो कौन सी वो चैलेंज थी डिटेक्ट करने में, पुलिस को कौन सी चैलेंज फेस करनी पड़ी? दिन ब दिन जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्रिमिनल शातिर होते जा रहे हैं, इसलिए पुलिस को भी उनसे कोप अप करने में थोड़ा समय लग रहा है। डिटेक्शन तो 2-3 दिन में ही हो गया था, लेकिन आरोपियों की धरपकड़ जो है वो लेट हो पाई। उसका रीज़न है टेक्नोलॉजी का इनके द्वारा बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है और भारत सरकार जिस तरह से विभिन्न सोशल मीडिया संस्थानों के साथ अपने पैक्ट्स बना रही हैं जिस तेज़ी से, उससे धीरे धीरे हमें सूचनाएं अभी तीव्र प्राप्त होने लगी हैं। पहले सूचना आने में 2 से ढाई महीने का समय लगता था, आज वो जो पूरी जो अवधि है वो गिरकर 15 दिन पे आ गई है और उसी से हमें इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। सर, ये जो तिलक है
वो तो वहीं पर यहीं पर यहाँ का रहने वाला था, तो उसको जो यहाँ की पूरी जिम्मेदारी सौंपी, तो उसको तो पता ही होगा ना क्यों जिम्मेदारी सौंपी है। किसको? तिलक से अभी पूछपरछ जारी है, उसकी 5 दिन की हमें रिमांड भी मिली है और हमें टेक्निकल एविडेंस और अन्य चीज़ों पे आएंगे तो हमें और चीज़ें स्पष्ट होंगी।